Yeah, hi guys. This is Ajay Ayush, and I'm back again today. And today we have a very special guest with us, and his name is Leslie Lewis. And I think he don't need any introduction. He doesn't need any introduction. He's such a great music composer that we've seen. He has given some timeless music since he has started music, and I could see Vivek has joined. Hi Vivek, and waiting for others to join, and waiting for actually Leslie sir to join as well. Uh, Meanwhile, all those who have joined, guys, how is your lockdown going? And I hope you guys are keeping safe yourself, and uh, you guys are keeping yourself safe inside your homes. ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकल रहे होंगे, काम होगा तो ही बाहर निकल रहे होंगे. And Sailor Singh is also joined. I'm just waiting for Leslie sir to join. And today is a very special life for me, because it gives I mean, एक अलग ही बात होती है जब आप बचपन से किसी का म्यूजिक सुनते हैं, आप किसी को एडमायर करते हैं, एंड यू आर लाइक एंड द सॉन्ग्स व्हिच दे हैव कंपोज्ड, and you sing those songs, and you have been singing those songs right from your childhood, and then you get a chance to interact with them, uh, to meet them, to interview them. So it's a fantastic thing that is happening to me today. And there are quite a lot of surprises today as well for him. So once he joins, and we'll get a lot of surprises for him as well. Uh, so meanwhile, firstly, for those who have joined, whether am I audible? Is my voice? Are you able to hear me? Can you just comment and say? I mean, let me know that whether my voice is audible or not. Yeah. So meanwhile, yeah, Vivek, that's very nice to hear that you are safe. And yes, of course, I'm also safe. And Will be traveling to my hometown in a couple of days. So just uh, you know, just but the whole situation in India is quite not very good actually, as we can say. But the good thing is that people are recovering well out of it. Yeah, thanks Vivek for letting me know that I'm audible. Just waiting for Leslie sir to join. Once he joins, we'll start the interview. And I hope and I think that today's interview will be a fantastic one, because there are lots and lots to talk about from Leslie sir. And here it is. Leslie G has joined, and is uh, so let me just accept it, and he is there with us. Hello, Leslie sir. How are Hi, you, sir? Ayush. So good to be with Hi, you. hi. Yeah, same here. First of all, very much thank you for accepting to be with me here. And yes, it's a great thing. As I was just talking before you joined that, बचपन से ही आपके गाने सुनते हुए आए हैं, गुनगुनाते हुए आए हैं, आपके जिंगल्स गुनगुनाते हुए आए हैं. एंड बिलीव नहीं होता है कि now that I am, getting interacted to you itself, बचपन में टीवी में देखा है colonial cousins and all those things, right? And I'm being live with you right now, so it's a huge moment for me. But Ayush, एक बात बताऊं जी कि जी आप जी जी. लोग ने मुझे टीवी पे देखा है. You all know me. I've never seen you, but you've been my fan. So for me, it's a big moment to realize and see the actual fans. So like you, I'm meeting you, and whoever else I meet on the internet, I realize, okay, these are the people that actually listen to my music. And so for me also, it's a Great, big great. moment. बिल्कुल सर. मैं इसमें एक चीज और ऐड करता हूँ, जस्ट टू ऐड. मैं बोला था कि आगे बोलूंगा, लेकिन अभी ऐड करता हूँ. बिकॉज सर बचपन से जो एक बच्चा होता है, हम लोग 10, 11, 12 साल के थे उस टाइम पे, तो एक चीज से बड़ी हम लोगों को एलर्जी थी, दैट वाज मिल्क. दूध से बहुत एलर्जी थी. और उस टाइम पे आपका वो जो जिंगल आया था, पियो ग्लास फुल दूध. So Good, it was like, it was a दूध दूध दूध. So it was like
हम लोग स्कूल जाते थे तो स्कूल में रिक्शा में हम लोग जाते थे बैक इन इन टाउन इन वेस्टर्न यूपी। सो रिक्शा में स्कूल जाते थे तो पूरी रिक्शा के सब बच्चे गा रहे हैं पियो ग्लास फुल दूध, आगे रिक्शा जा रही है वहां पे वो पूरा जिंगल चल रहा है स्कूल में वाह, भी, एंड वी वर मोटिव। सो दिस इज द इट्स थिंग व्हिच सो अमेजिंग टू हियर दिस बचपन से। स्टोरीज। आपकी कहानियां सुनने में ऐसा मुझे लग रहा है कि ये सब मैंने तो मिस ही कर दिया। नहीं, जब आया था आप लोग एक्सपीरियंस किया, हमने नहीं किया। सर बस हम लोगों का बचपन बहुत अच्छा बनाया है, बिकॉज आई रिमेम्बर दैट जिंगल यूज टू कम ड्यूरिंग डीडी नेशनल। हम लोग स्कूल से वापस आते थे और डीडी नेशनल पे शांति ऐसे सीरियल्स आते थे, उनके बीच में वो जिंगल बजता था। तो वी यूज टू वेट फॉर इट कि यार वो जिंगल आएगा, हमको सुनना है। वाह, So that's a great thing. So thank you, माय प्लेजर। for ग्रेट सर। अच्छा सर, मैं और एक चीज के लिए और बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं बाकी चीज स्टार्ट करने से पहले आपका एक अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले एक सॉन्ग रिलीज हुआ है जिसका नाम है चंद्रमा। सो जी, आई वाज रियली वेरी एक्साइटेड। सो प्लीज उसके बारे में कुछ बताइए। आई मीन हाउ डिड दैट सॉन्ग हैपेंड एंड व्हाट वाज द मोटिवेशन फैक्टर बिहाइंड दैट सॉन्ग? तो इसमें दो कहानियां हैं। एक जो गाने की कहानी है कि जहां मैंने देखा कि पैंडेमिक के बाद सबका प्रॉब्लम हो गया है। एक तो हमारे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो भी है उस आगे क्या होने वाला है, लाइव होने वाला है, गिग्स होने वाले नहीं होने वाले, ये हमारा इंडस्ट्री, रिकॉर्डिंग इंडस्ट्री, बहुत बहुत से इंडस्ट्रीज जो म्यूजिक रिलेटेड है उनको प्रॉब्लम है। उसके अलावा भी बहुत से अलग इंडस्ट्रीज को भी ये कोविड के बाद में बहुत प्रॉब्लम है। तो जी जी मैंने ऐसा गाना बनाया कि मैंने सोचा कि गणपति जी जो जो अच्छा चीज जब आरंभ करते हैं तो ही इज ऑलवेज प्रेजेंट कि ऑस्पिशियस नया कुछ शुरू हो। तो हमें अभी एक नया लाइफ स्टार्ट करना है कोविड के बाद। और कोविड में इतना अंधेरा है, मैंने तारों से भी पूछा कि चंद्रमा है कहाँ, वो बोल रहे पता नहीं। और क्यों मैं मिल नहीं सकता, तो मैंने गणपति से बोला कि आप जरा चंद्रमा से हम सब से मिलाइए, क्योंकि हम इस अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा। तो एक थोड़ा चंद्रमा आ जाए तो हम सोचे कि हाँ यहाँ हम पैर रख सकते, थोड़ा आगे जा सकते कोविड के बाद। तो ये प्रार्थना मैंने जो कंपोज किया है सब मेरे फैंस के लिए है, सब लोगों के लिए है। और एक गणपति से मन्नत है कि प्लीज आप चंद्रमा जी से हमको मिलाइए ताकि आगे कुछ दिखे। जी जी जी, वंडरफुल वंडरफुल सर, इस तरह सॉन्ग, वंडरफुल जी जी वो गाने का स्टोरी है, मतलब उसका मीनिंग क्या है क्या है। लेकिन मैंने जी भी सोचा कि जैसे आप कह रहे 90s में इतने गाने किए, यारो दोस्ती, पल, सानी दपा, जानम समझा करो, परी हूँ मैं, ये सब लोग को मैंने स्टार, मतलब वो स्टार बन गए वो गानों से। वो जान लोग उनको जानते हैं वो गानों से जो मैंने जी बनाए। जी 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 करेक्ट। बिल्कुल। जी लेकिन जी लेस्ली लुइस को उसके गाने से कोई जानता नहीं। कॉलोनियल कजन्स में भी जी जी मैं हम दोनों साथ में है तो एक जोड़ी है विच इज फैंटास्टिक, वो तो है ही है। लेकिन एक मेरा जो एक स्टैम्प, एक जो मेरा एक अंदाज जो है वो लोगों ने अब तक सुना नहीं है। तो मैंने एक अपना टाइप का म्यूजिक क्रिएट किया जो मैं करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है ग्लोबल हिंदी। वाओ। जैसे पॉप होता है, पॉप होता है, मैंने सोचा कि इस मेरे म्यूजिक को अब मुझे ग्लोबल हिंदी का एक जॉनर का एक टैग लगाना है, क्योंकि म्यूजिक इज ग्लोबल। और वो उसमें रॉक भी है, जैज भी है, इंडियन क्लासिकल भी है, इंडियन फोक भी, जो भी ग्लोबल म्यूजिक है, म्यूजिक इज ग्लोबल, बट लैंग्वेज हिंदी में है। जी जी तो जी जी ग्लोबल हिंदी, लैंग्वेज हिंदी में है, हिंदी में गा रहा हूँ, बट इट्स नॉट इंडियन, क्योंकि मैं राइट अलाप राइट नहीं राइट गा रहा हूँ, ना सरगम गा रहा हूँ, ना मैं इंडियन स्टाइल क्लासिकल गा रहा हूँ। मैं एज अ वेस्टर्न सिंगर जो हिंदी जानता हूँ, हिंदी में गा रहा हूँ, लेकिन मेरी अंदाज थोड़ा वेस्ट का है, इंडिया का भी है क्योंकि मैं भी हिंदुस्तानी हूँ। तो एक जी जो जी जी फ्यूजन जी जो है वो तो मुझ में खुद में है। तो मेरा जो हाँ नया जी म्यूजिक आएगा, और अब होपफुली आप भी सपोर्ट करोगे जैसे आएगा, क्योंकि इसमें ना कोई रिकॉर्ड लेबल का इन्वॉल्वमेंट है, ना कोई मैनेजमेंट का इन्वॉल्व। मैंने सोचा कि अगर मुझे कुछ मेरा करना है तो मुझको खुद करना पड़ेगा। और जी उसलिए ग्लोबल हिंदी मैंने स्टार्ट किया। और आगे जाके बहुत से गाने आएंगे। मेरी कोशिश है कि हर महीने रफले एक गाना नया वीडियो आए। बहुत मुश्किल है जी नया, लेकिन मेरे पास 70 60 80 गाने एटलीस्ट ऑलरेडी है, अमेजिंग सॉन्ग्स। लेकिन अलग अलग स्टाइल्स के, रॉक, जैज, ब्लूज, सब हिंदी में है। और जो
आपने हिंदी वैसा सुना नहीं उस टाइप का। तो ये पहला जो प्रार्थना है चंद्रमा, कोविड के टाइम जी ये जी भी रिलेटिव है। और मेरा जो नया जर्नी है कि जी 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 एज अ सिंगर, एज अ कंपोजर, एज एन आर्टिस्ट, कंप्लीट आर्टिस्ट, जो जी खुद के लिरिक्स भी लिखे, खुद के गाने भी कंपोज करे और खुद गाए। जी 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 चंद्रमा जी भी मैंने लिरिक्स लिखे हैं, मैंने गाया है, मैंने कंपोज किया है। वही चीज आगे जाके रहेगा जो मेरा एक पहचान बनेगा कि ये लेस्ली लुइस का म्यूजिक है, और उसे वाह मैं ग्लोबल हिंदी करके पैकेज में डालना चाहता हूँ, ताकि लोग समझे कि हाँ ये टाइप का म्यूजिक है, थोड़ा इंडियन भी है, थोड़ा वेस्टर्न भी है, लेकिन फ्यूजन भी नहीं है रियलिटी में। करेक्ट 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 जो जी 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 क्लासिकल इंडियन बिल्कुल क्लासिकल बेस होगा, कॉम्पोजिशन जैसे चंद्रमा में कॉम्पोजिशन क्लासिकल बेस है, लेकिन मैं जी जी क्लासिकल गाता ही नहीं। हाँ जी चंद्रमा से तू मिला, चंद्रमा जी से सर सर हो जाए दो दो तीन लाइन हो जाए अगर गिटार साथ में है तो मजा ही आ जाएगा कहाँ भागता नहीं है, गिटार साथ नहीं है। देवाय गणपति देवा, चंद्रमा से तू मिला। देवाय गणपति देवा, चंद्रमा से तू मिला। तेरे बिना मैं यहाँ पूछूं तारों से तू कहाँ, ढूंढूं तुझे night मिल ना पाऊं क्यों मैं तुझे। तेरी रोशनी में हर खुशी, मुझे रास्ता तू बता। इस अंधेर में कुछ ना दिखे, चंद्रमा तू कहाँ। देवाय गणपति देवा, चंद्रमा से तू मिला। देवाय गणपति देवा, चंद्रमा से तू मिला। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। वाह 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 सुपर सुपर आई मीन अमेजिंग बहुत 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 ही खूबसूरत बहुत ही प्यारा और मैं जो भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं मैं उनको बोलूंगा प्लीज गो टू लेस्ली सर्स यूट्यूब चैनल एंड प्लीज वॉच चंद्रमा एंड ऑल्सो सब्सक्राइब इट बिकॉज some of the amazing music gonna come under the genre of global Hindi. Please go and watch him. Please support him because I mean जो भी म्यूजिक लेस्ली सर ने अब तक दिया है वो इट इज ऑलवेज बीन अ टाइमलेस म्यूजिक लाइक यू नो आपको जरूरी नहीं है वो म्यूजिक सुनने के लिए कि ये यू हैव टू बी इन द 90s ओनली देन ओनली यू विल बी टू अंडरस्टैंड दैट म्यूजिक सो वो म्यूजिक ऐसा म्यूजिक है कि आप अगर 2010 में भी पैदा हुए हैं तब भी आपको अच्छा समझ में आएगा एंड यू विल एंजॉय इट आप तब भी आप यही बोलोगे यार ये म्यूजिक 10 साल पहले बना दिया उन्होंने तो दिस इज व्हाट लेस्ली सर इज ऑल अबाउट तो प्लीज गो एंड वॉच sir's Chandrama on his YouTube channel and please subscribe it and wait for and eagerly wait actually for the upcoming songs which he just told about. हाँ आयुष, मुझे So sir, यही उम्मीद थी कि लोगों तक पहुंचना अभी मैं खुद ही कर रहा हूँ। जैसे मैंने कहा जी इसमें जी कोई जी मैनेजमेंट नहीं है, कोई रिकॉर्ड लेबल नहीं है, मैं खुद अपना कर रहा हूँ। तो इस जी मेरे जी चैनल पे अभी आप जो देखेंगे, एक तो नई मेरे गाने हैं, फिर जी जो आर्टिस्ट में मैं बिलीव करता हूँ, जैसे काव्या जोन्स करके जो मेरी को वोकलिस्ट है, 2 साल जी मेरे साथ उसने गुजारा, मैं उसका एल्बम कर रहा हूँ। तो आपको जी 2020 का नया वॉइस, नया साउंड
उसमें मेलोडी भी है और नयापन भी है। आप उसका भी एल्बम जब आएगा तो आप उसको भी सुनिएगा, वो भी मेरे चैनल पे आपको मिलेगा कि नयापन, नया आर्टिस्ट, इंडिया का जो फ्रेशनेस जो है वो 100% आपको मिलने वाला है। तो काव्या जोन्स करके वो नवंबर में रिलीज करूंगा, वो अब वो भी मैं चाहता हूँ सब लोग जाके सुने कि टोटली इंडिपेंडेंट है, इसके पीछे बस मैं हूँ जी और हम सब साथ हैं, नोबडी बिल्कुल एल्स। सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, वी आर ऑल अ टीम, यू नो, यू एंड ऑल योर लिसनर्स, ऑल योर व्यूअर्स आर ए टीम। सो मतलब हमको बहुत अच्छा लगेगा कि आपको सपोर्ट करें, और आपका जो जिस टाइप का म्यूजिक आपने अब तक दिया है वो उसको सुनने में मतलब हम लोगों की बहुत सारी यादें आपके म्यूजिक की सुनी है। मैं आऊंगा आगे उस चीज पे कि मैं आपको बताऊंगा मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस कैसे थे जब व्हेन आई लिसन टू यू, बहुत सारी चीजों में मैं उसके बारे में बात करूंगा। सर आगे बढ़ने से पहले ये चीज पूछते हैं कि यू नो when did you realize कि यार मेरे अंदर यू नो म्यूजिक है एंड आई शुड परस्यू इट, और मुझे बड़ा मजा आ रहा है वो, मतलब बिफोर बिफोर गेटिंग इनटू द मेन स्ट्रीम आपको कब ये रियलाइज हुआ कि यार मुझे ये करने में बड़ा मजा आ रहा है, आई शुड डू इट? अच्छा, माय फादर, मेरे जी पिताजी इंडिया के बहुत बहुत बड़े कोरियोग्राफर थे, पीएल राज। तो आपने जी सब जी जी फिल्म जी देखे होंगे, शोले, सरगम, डॉन, you know, all the के पान बना, so it's all done by हाँ done by my dad. Evening in Paris, इंतकाम, इंतहाम, जो भी वो सब। So my dad has been a very very big choreographer in Bollywood. लेकिन राइट वहाँ क्या हुआ, तो बिकॉज वो तबला भी बजाते थे और क्लासिकल म्यूजिक, ऑब्वियसली डांसर है, तो क्लासिकल जी जी डांस, तो उस माहौल में मुझे, क्योंकि जाकिर भाई, जाकिर हुसैन, वो मुझे, मैं छोटा जी था जी तब जी हाथ में ऐसे उठाते थे। सो इट इज एक माहौल, जी क्लासिकल म्यूजिशियंस, यू नो, सितारा देवी जी, जो गोपी कृष्ण जी, वो तो पूरा डांस और क्लासिकल म्यूजिक। और मेरे फादर भी सुनते थे, मतलब विलायत खान, आमिर खान, अलग अलग आर्टिस्ट को उनके रिकॉर्ड्स लाके, तो वो घर पे सुनते थे, तो मुझे सुनना पड़ता था, ऑप्शन ही नहीं था। हाँ जी तो हाँ, हाँ जी और खुद बॉलीवुड कर रहे, तो बॉलीवुड के जब डांस कंपोज हो रहा है, तो घर पे गाना 50 बार बज रहा है कि वो कंपोज कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या स्टेप होना है, और उनके साथ रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जाना, कभी कभी एडिटिंग में जाना, तो वो ऑलरेडी मुझे एक एक्सपोजर मिल गया था। लेकिन जब मैं स्कूल में जी गया जी तो हाँ मुझे जी 10th स्टैंडर्ड जब, तो मैं माउंट आबू में, सेंट मैरीज माउंट आबू में बोर्डिंग स्कूल में था। तो जब जी 10वीं पास कर रहे थे और वो स्कूल जो है पूरे जंगल में है, तो वहाँ भालू, शेर, सांप, चिड़िया, सब उनके साथ ही हम लोग रहते थे। कभी एक बाई चांस कार दिखती थी तो डर जाते थे हम लोग। तो अच्छा कार, अच्छा जी कार, कार आ रही है, बाजू हटो, फिर एक गाड़ी आ रही है बस। तो दैट्स हाउ जी आइसोलेटेड वी लिव्ड इन स्कूल। जी तो जी जब जी वो कह रहे, जब हमारे प्रिंसिपल ने कहा कि ओके अभी आपका 10th स्टैंडर्ड हो रहा है, यू आर गोइंग बैक टू द बिग बैड वर्ल्ड ऑफ जी जो सिटीज में जा रहे हो, तो आपको क्या बनना है। तो बहुत से मेरे फ्रेंड्स ने, कोई बोला डॉक्टर बनना है, मुझे लॉयर बनना है, मुझे जो भी है। तो सो लेस्ली, व्हाट आर यू गोइंग टू बिकम? तो मेरे माइंड में कुछ था ही नहीं, मैं पढ़ाई पे तो मेरा मेरा फोकस ही नहीं था। तो आई सेड सर आई वांट टू प्ले द गिटार। और मेरा पूरा क्लास मुझ पे, सब ने हंसा मुझ पे, हंसने हंस, अच्छा हाँ, ही वांट्स टू प्ले द गिटार, 10th स्टैंडर्ड पास करके उसको गिटार बजाना है। टुडे जी वही दोस्त मुझे कहते हैं कि ओ वी न्यू यू आर गोइंग टू मेक इट। आई सेड डोंट डोंट लाई, तुम लोग सब मुझ पे हंस रहे थे। सो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, म्यूजिक और डांस, वो एक जो एंटरटेनमेंट, व्हाटएवर, म्यूजिक पास पास ही था पहले से। और माय डैड इज आल्सो वेरी इंटरेस्टेड इन इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आजकल हिप हॉप में एक ड्रम मशीन है, कहते हैं रोलेट का TR-808, या सब लोग सैंपल्स यूज करते हैं 808, मेरे पास 808 था क्योंकि मेरे डैड ने लिया था, वाह बहुत इंटरेस्टिंग। तो आई ग्रो अप विथ ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो सही में कहूँ कि मैं, आई एम एन EDM किड। व्हाट इज EDM? इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक। वो शुरू कब हुआ? 80s में शुरू की, उसके पहले कंप्यूटर्स थे नहीं। तो जब जी कंप्यूटर्स जी आए तो EDM शुरू हुआ, जिस जहां डिस्को से स्टार्ट हुआ। एंड आई हैव बीन इन इलेक्ट्रो, आई वाज 17। तो मैं ही वो ऑडियंस था ना जो EDM में, EDM के पीछे इलेक्ट्रॉनिक, ये सिंथेसाइजर, सब उसके पीछे। अभी मैं
म्यूजिक इन जनरल करता हूँ, लेकिन ईडीएम भी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब जहां से ईडीएम शुरू हुआ वहां से मेरा यूथ शुरू हो गया। जी 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 तो जी। आई एम, राइट राइट राइट। लेकिन साथ में इतने अच्छे म्यूजिशियंस और सिंगर्स के साथ काम करने को चांस मिला है, तो बहुत सीखने को मिला है। तो वो भी राइट सुन के राइट। अभी वो लेस्ली लुइस बन रहा है, इतने लिरिक राइटर्स के साथ, राइट फ्रॉम राजेश जौहरी जी, महबूब, मजरू सुल्तानपुरी जी, सो मेनी, कितने लिरिक, एवरीबडी, उनके साथ काम करते 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 मुझे कुछ सीखने को मिला। अब मैं मेरे खुद अपने लिए करता हूँ, दूसरे के लिए नहीं करता हूँ। जी 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 तो सो इट्स रियली अमेजिंग कि ये सब जो मिक्सचर अब ये ग्लोबल हिंदी में, जैसे कुमार जो इज अ वेरी बिग लिरिक राइटर, टी जी। सीरीज के सूरज डूबा, हम्म। हाँ। और मुझे टेक्स्ट करके बोल रहा है कि वाओ सर सो गुड। अभी मैं बोल रहा अरे लिरिक्स मैंने लिखे हैं, मुझे छोड़ दो, बट इज अ गुड फ्रेंड। आई एम जस्ट सेइंग आई गॉट टू जी लर्न अ लॉट, सबके साथ काम जी जी करके जी मुझे सीखने को मिला। और वो जी जी। मैंने सोचा जो मैंने सीखा है और जो मुझे अभी पता है इतने सालों के बाद, वो मैं जुड़ के अपना म्यूजिक बना के पूरी ऑडियंस को बताऊं। क्यों मेरे हिसाब से 13 years to 26 years के लिए पॉप म्यूजिक बनता है। आप 26 के जी बाद 30 तक जाते हो तो आपका शादी होता है, आपको घर लोन पे लेना पड़ता है, आपके बच्चे होते हैं, उनको स्कूल जाना है, यू आर अंडर स्ट्रेस। तो कॉन्सर्ट्स और गिग्स जाने के लिए पैसे के लिए वो आप वहां नहीं डालेंगे, आप ईएमआई में डालते हो या स्कूल का फीस में डालते हो या लाइफ नया घर, हम लोग को सोफा लेना है, ये ले। तो वो जो यंग जनरेशन था वो मूव अप हो जाते हैं, वो उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाए, लेकिन उनके लिए कोई म्यूजिक नहीं बनता है ट्वेंटी जी सिक्स के जी जी बाद, जी। क्योंकि वो पैसे नहीं खर्च करते हैं। हाँ। इसके लिए बनता है जो पार्टीज, जो क्लब्स में जाते हैं, इवेंट्स में जाते हैं, कॉन्सर्ट्स में जाते हैं, टिकट्स लेते हैं, खर्च, पैसे खर्च करते हैं। तो अभी जब उनका वो थोड़ा सीनियर हो जाते हैं 30+, तो उनको आउट ऑफ द वे हो जाता है। तो मैंने सोचा कि उनके लिए भी म्यूजिक क्यों अभी उनके लिए सिर्फ बेस्ट ऑफ किशोर कुमार या बेस्ट ऑफ देव आनंद, उस टाइप के पैकेज म्यूजिक, पुराने म्यूजिक मिलता है, तो वो बेचारे वही सुनते रहते जी। हैं। उनको अब फिर बोलते हैं हमारे जमाने में क्या म्यूजिक, 90s में क्या लेस्ली सर्दी म्यूजिक, अरे आगे उसके 80, 2000, 2010। हाँ, तो मेरा कहना है कि राइट। नया म्यूजिक जी हो सकता है जो ग्लोबल हो, सबके लिए अच्छा। तो 15 हो या 20 हो या 50 हो या 60 हो, ठीक है, ये गाना आपको अच्छा लगेगा, वो गाना वो आपको लगेगा, हो सके हर गाना आपको नहीं है, बट डेफिनेटली आपके लिए गाना बनेगा। एंड ग्लोबल हिंदी इज हियर टू प्रेजेंट म्यूजिक टू द होल वर्ल्ड ऑफ ऑल एजेस। राइट राइट राइट। जैसे सर अभी आप बोल रहे थे कि जो 26 27 या जो लोग फैमिली वाले हो जाते हैं, बच्चे हो जाते हैं, तो उनके लिए वही गाने रहते हैं। तो ऐसा ही एक कमेंट जो रुचिर गुप्ता का आया है कि ही सेड दैट द वेरी एप्ट सॉन्ग आपका जो रहा है वो कम बैक एज जीसस कम बैक एंड सेव द वर्ल्ड। कृष्णा, सो दिस दिस कृष्णा कृष्णा नहीं बेगने। सो सो ये जो मतलब सॉन्ग है, and मैं रुचिर को बोलना चाहूंगा कि this was a song which has been released back in 90s, but again Leslie sir is coming up with good music for us itself, and in the name of the genre called as global Hindi, और चंद्रमा ऑलरेडी रिलीज हो चुका है, प्लीज गो एंड लिसन इट। एंड आगे भी बहुत सारा ऐसा म्यूजिक हम लोग सुनेंगे। And Namrata Vishwanathan is saying that the most humble person I've ever seen. A big fan of yours, sir. Lots of love. थैंक यू। And Payal is saying big fan, sir. And so this is the thing, sir. अच्छा सर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे अभी बात चली थी come back and save the world, कृष्णानी बेगने। So how did Colonial Cousins जो formation हुआ Colonial Cousins band का, वो कैसे फॉर्म how हुआ? how was it? तो उस हाँ टाइम जी। मैं बहुत जिंगल्स करता था, अभी मेरे जिंगल्स करते करते 30-40 साल हो गए। तो मैंने प्रोबेबली मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स जो है इंडिया में, उनके लिए मैंने कुछ तो म्यूजिक बनाया है, मतलब जिंगल्स किया है, एंथम किया है, कुछ उन बहुत से ब्रांड्स फॉर 30-40 इयर्स में, प्राइम टाइम कमर्शियल्स जो मेन कमर्शियल्स है, तो सबके लिए मैंने किया। तो जब मैं जिंगल्स करता था उसमें मास्टर लैंग्वेज अगर इंग्लिश हो या हिंदी हो,
तो अब करते थे जैसे कि तेलुगु, तमिल, गुजराती, जो भी है, मराठी। तो हरिहरन मेरे लिए जिंगल्स गाते थे इन द अच्छा। लैंग्वेजेस, हिंदी में कभी, तमिल में कभी, तेलुगु कभी। हाँ, तो हम लोग एक दिन एक हिंदी जिंगल था, कुछ 8 बजे स्टूडियो पे, रात का जिंगल था, जी। शाम के टाइम का बुकिंग था। तो बैठे बैठे थोड़े बहुत कुछ मैं प्ले कर रहा था, तो हरी जी बीच में, तो मैंने बोला भाई टक्कर ले लो क्या। तो मैंने वहां से कुछ ब्लूज स्टार्ट किया, तो ब्लूज में भी आ गए। तो वहां से मैंने कुछ कंट्री अच्छा। किया और कंट्री म्यूजिक में भी आ गए। मतलब क्योंकि क्लासिकल जो सीखते हैं वो एक ही राग पकड़ के एक ही सुर में गाते हैं, ज्यादा चेंज नहीं होता है। हाँ। तो जी जी हरी जी जी। बहुत फ्लेक्सिबल होके मेरे साथ, तो उस तो एटलीस्ट आधा पौना घंटा हम लोग ऐसे बैठ के, बाकी के सब स्टूडियो में थे, सब ने छोड़ दिया काम और जमीन पर बैठ गए, ऐसे सुन रहे थे। दैट वाज रियली द फर्स्ट अनप्लग्ड। और इतना क्रेजी ओ। था, हम लोग इतने लॉक हो गए कि क्या हो रहा है हमको खुद को पता नहीं। और सडनली फोन आया, हाँ स्क्रिप्ट रेडी है। अरे बाप रे, पूरा नशा उड़ गया। तो उस वक्त हमने कहा कि चलो इसका कुछ करते हैं, लेट्स फॉर्म अ बैंड। और लोगों के सामने जाके परफॉर्म करते थे, क्योंकि उस टाइम बैंड ज्यादा लोग, एल्बम बनते थे लेकिन लाइव परफॉर्मेंस इतना नहीं था। तो हमने सोचा कि अगर कॉलोनियल कजिन्स हम फॉर्म करें तो एक ऑडियंस के सामने जाके ये परफॉर्म करना चाहिए। एंड जी वहां जी से जी हमारा जी एक जी। जर्नी शुरू हुआ। वाह वाह। और सर, मैं मेरे पास एक छोटा सा सरप्राइज है, कि जब मेरे को हुआ कि नहीं, आपके साथ आई एम गोइंग लाइव, सो yesterday नाइट आई sent a message on WhatsApp to Hariharan ji, and I said him that I am going live with Leslie ji tomorrow. Or do you want to give any message to him? तो उन्होंने बहुत छोटा सा, बड़ा प्रिसाइज और बड़ा स्वीट सा एक मैसेज आपके लिए भेजा है, एंड हिज मैसेज इज ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द अपकमिंग रिलीजेस ब्रो। थैंक यू। तो जी जी तो जी। और यही आगे होता है ना, जी ब्रदर सिस्टर जी। फैमिली, कॉलोनियल कजन्स, वो भी सब सब सपोर्ट कर रहे हैं। तो बिल्कुल, अच्छा लग रहा है कि एब्सोल्युटली सर। हाँ, और ऑफ कोर्स हरी तो इज लाइक अ ब्रदर, सो वो जी 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 जी। तो है। लेकिन बहुत अच्छा लगता है कि जब सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एंड सर, जब कलोनियल कजन की बात की, तो एक कोई गाना अगर कलोनियल कजन का हो जाए, तो आई मीन इट विल बी ग्रेट। Okay. हाँ जी। Something about the way you smile, you may never know the reason why. Sunny da ba ga ma ga sa. Something about the way you smile, you may never know the reason why. Sunny da ba ga ma सारी ga. दबा मगामा गरिसा। Oh जाना निगाहों में है कैसी मस्तियाँ, हवाओं में है नगमा मेरे दिल का, बुलाना कहीं देना ये वादा प्यार का। सानी ना मगर something about the way you smile that you may never know the reason why. Sabi na mगर something in my heart just cried, but you may never know the reason why. Sani da दबा मगामा गरिसा। वाह वाह वाह। फैंटास्टिक फैंटास्टिक, सुपर। आई मीन, अभी इसको वीडियो पे सुने तो भी उतना ही मजा आता है, लाइव आपके साथ सुनो तो इट्स लाइक वाह। आई मीन, और भी ज्यादा मजा आ रहा है। इट इज ऑलवेज बीन अ फ्रेश। मतलब कभी कई कई म्यूजिक ऐसा होता है जो थोड़ा लगने लगता है, हाँ यार ठीक है म्यूजिक है, लेकिन दिस म्यूजिक इज लाइक कभी पुराना ही नहीं होता है, इट्स ऑलवेज लाइक न्यू। सो एंड ऐसे ही जो कोक स्टूडियो, जो हमारा जो कोक स्टूडियो के अंदर भी यू वर देयर, एंड व्हाट वाज योर फीलिंग व्हेन यू वर गिवन द ये आपको कोक स्टूडियो करना है, और जबकि पाकिस्तान का कोक स्टूडियो ऑलरेडी था, पाकिस्तान का कोक स्टूडियो वाज लाइक एवरीबॉडी वाज अप्रिशिएटिंग इट। सो व्हाट वाज योर फीलिंग व्हेन इट वाज टोल्ड कि कोक स्टूडियो करना है? तो उस वक्त ऑब्वियसली कोक स्टूडियो मैंने स्टार्ट किया इंडिया में, तो वो मेरे पास आया, पूछा। आई रिमेम्बर आई आस्क्ड
MTV को मैंने पूछा व्हाई मी, यू नो, इट्स सर यू नो म्यूजिक, ऐसे ओके ठीक है उतना, बट आप कर लो वॉट एवर यू डू। तो एक जी जी फ्री हैंड मिल गया था। और मुझे लगता है कि उस टाइम क्या क्या था कि सब जो आर्टिस्ट है, वेदर यू लिसन टू सुनिधि और शंकर और कैलाश और के जो भी है, सब उस वक्त 4-5 साल रेडियो पर और टेलीविजन पर सब बॉलीवुड गाने ही होते हैं। ऑल्टर क्यों इंडी पॉप थोड़ा बंद हो गया था। तो मैं नहीं कहता हूँ कि बॉलीवुड खराब है, अच्छा नहीं है, कुछ वो बात ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि उस टाइम सिर्फ बॉलीवुड बजता था, तो रेडियो पे बॉलीवुड, टीवी पे बॉलीवुड, रियलिटी शो में सिर्फ बॉलीवुड गाना। तो सब लोग ने वही गाना सुना, अलग कुछ था ही नहीं इंडिया में उस वक्त। तो जी जब कोक स्टूडियो पाकिस्तान से जब शुरू हुआ, एक बहुत इंटरेस्ट लोगों को आने लगा कि ये एक यूट्यूब का साइट है, लेट्स पुट इट दैट वे, एक साइट है, वहां क्लिक करें तो हमको बहुत अच्छा म्यूजिक मिलेगा। हाँ जी हाँ जी हो सके 1 साल के बाद लेस्ली न्यूज का चैनल भी वही बनेगा, जो आपको एक ही लिंक मिलेगा, जो आपको सब म्यूजिक मिलेगा, लाइक कोक स्टूडियो कि एक बिल्कुल लिंक, बनेगा सर, बिल्कुल एवरीबॉडी बनेगा। एक ही लिंक पे अन जाना है आपको, और कोई लिंक है ही नहीं आपको जी अगर जाना है। जी जी तो इन द सेम वे जी 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 जब कोक स्टूडियो मुझे मेरे हाथों में सौंप दिया कि सर आप इंडिया में ले आइए, इट वाज वेरी एक्साइटिंग फॉर एवरीबॉडी। सब सिंगर्स, सब म्यूजिशियंस की उनको कुछ अलग करने का चांस नहीं मिल रहा था। और कोक स्टूडियो जी में जी एक वी लिव्ड म्यूजिक। मैं बोल सकता हूँ हर आर्टिस्ट, हर सिंगर, हर म्यूजिशियन, वो यू नो आई डिड 51 सॉन्ग्स इन 40 डेज, मतलब पूरा 40 साल, वाओ वाओ 40 वाओ डेज 2 घंटा सोना, फ्रॉम 5:30 AM टू 7:30 AM, उतना ही सोना है। और आप सोचो 5 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, 15, 20, 40 दिन के बाद सोया नहीं आदमी, फिर भी 100% कर रहे हैं। तो ये एक थोड़ा जुनून होता है, वो जी जी सबको। जी जी आज आज आप मुझे कहो कि करो, मुझसे नहीं होगा। वो जब आपका टाइम होता जी है, और थोड़ा पागल होना चाहिए आदमी लाइक मी, जी जी तो कर सकता है। जी उतने गाने इतने टाइम में, और उसमें क्या है, सबका सबका एक्साइटमेंट था। तो हाँ वहां जी से कोक स्टूडियो मैंने स्टार्ट किया, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब से कोक स्टूडियो मैंने स्टार्ट किया, हर कॉलेज में बच्चे लोग अपने बैंड्स फॉर्म कर रहे हैं, ड्रम्स, बेस, फ्लूट, तबला, ऐसे वाह। तो वो एक जो फ्यूजन का, और हर कॉलेज में अपने अपने बैंड्स, यंग यूथ का जो बैंड हो गया, उनके खुद के बैंड्स, वो मुझे जी लगा जी बहुत। जी हाँ, तो कोक स्टूडियो के बाद जैसे कि OLX पे ऐड आता था, मैंने मेरी गिटार OLX पर बेच दी। लेकिन गिटार गिटार तो बहुत अलग अलग चीज है, नॉट अ नॉर्मल थिंग, इट्स नॉट अ फ्रिज या राइट वॉशिंग मशीन या फ्रिज है, गिटार गिटार। लेकिन बाय दैट टाइम एवरी किड, हर बच्चे के पास गिटार था, इट बिकेम सच ए कॉमन थिंग। सो कोक स्टूडियो वाज अ जी बिग जी इन्फ्लुएंस फॉर द यूथ। राइट गिटार ले लो, यू नो, लर्न योर गिटार, लर्न टू प्ले ड्रम्स, लर्न टू प्ले तबला, लर्न टू प्ले फ्लूट, जैम करते, जैम, द वर्ड जैम, वो सब। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये राइट सब राइट और एक्चुअली ट्रेंड्स शुरू हो ये गए। मैंने तो भी देखा पहला जो मैंने कोक स्टूडियो का जो मैंने फर्स्ट जो ओपनिंग सीजन किया था, वो जी सोनी म्यूजिक पे प्लैटिनम गया एज एन ऑडियो वाह CD, प्लैटिनम। जी जी मुझे वाह वाह कॉल है वाह MTV से, सर द CD इज गॉन प्लैटिनम। आई सेड वाओ, विदाउट वीडियो। तो द म्यूजिक हैज टू टॉक टू यू। तो मेरा वही कहना है कि अभी भी जो, जैसे अब चंद्रमा, आप ट्रैक अगर जाके सुनेंगे तो आपको एक जी फील मिलेगा। मैंने गिटार उठा के वही चीज आपके सामने गाया है, बहुत दूर हाँ नहीं है। जी हाँ तो जी आप ऑनलाइन जी देखोगे या मैंने गिटार, क्योंकि वो म्यूजिक उसमें होना बहुत जरूरी है। और आगे का जो आने वाला है मेरे चैनल पे, जो म्यूजिक आएगा, और जैसे कि काव्य जोन्स का भी मैं म्यूजिक कर रहा हूँ ये टाइप की, वो भी गाना जी जब आएगा, मुझे लगता है कि ये कुछ अलग होना चाहिए और लाइकेबल होना चाहिए। सिर्फ अलग करने से मतलब नहीं है, सब लोग अलग, आप भी अलग कर दे। आप एक काम करो, पिंक शर्ट पहन लो और एक चप्पल और एक जूता, एक बंदा, अलग होगा। अच्छा लगता है तो अलग बात है, लोगों को अच्छा लगना चाहिए, राइट क्योंकि आप कमर्शियल वर्ल्ड में आ रहे हैं। आप आपके आपके गाने किसको पेश कर रहे हैं? अगर मैं मेरा जी जी गाना जी जी आपको पेश करूंगा और आपका टाइम लूंगा और आपको बोर करूंगा, तो आई शुड नॉट बी देयर। तो मैं घर पे अपना गाना गाऊं ना। तो मेरा कहना है सही कि सही जो मैं जी कर रहा हूँ एज एन आर्टिस्ट, अगर मैं खुद के लिए कर रहा हूँ और मुझे इंटरेस्ट नहीं है, आपको इंटरेस्ट है कि नहीं,
तो ठीक है, लेकिन मुझे इंटरेस्ट है कि आपको इंटरेस्ट होना चाहिए मेरे गाने में, ताकि आपको अच्छा लगे। लेकिन मेरा गाना बिल्कुल मैं सर। ऐसा नहीं करूंगा कि जो आपको चाहिए इसीलिए वैसा कर रहा हूँ, नहीं। मैं अपनी तरीके से करूंगा जैसे होते आया 90s में। आपने यारो दोस्ती, राइट। पल, जानम समझा करो, परी हूँ मैं, तो मेरे हिसाब से है, लेकिन आपको अच्छा लगता है। वो चीज अभी 2020s में मुझे शुरू करके, चंद्रबास से शुरू हुआ है। यहाँ से मुझे एक नया जर्नी शुरू करना है। तो ऑलरेडी ये इस लॉकडाउन में ऑलरेडी आई बिकेम सीनियर सिटीजन। तो आई, हाँ, 60 years हो गया, तो मैंने बोला पूरा एक नया न्यू लाइफ एज ए यंग म्यूजिशियन, एज अ 19-year-old। आप मेरा म्यूजिक सुनोगे तो इट्स ऑन एज, विद एनीबडी, क्योंकि आई एम जी। 19 इन माई हेड। मेरा फिजिकली राइट भी राइट। हो, बट रॉकिंग जी होना जी जी चाहिए। जी। आपको सुन के पहला टाइम सुन के आपको गाना नहीं अच्छा लगे तो मेरे लिस्ट से मैं निकाल दूंगा, उतना मेरा गारंटी है। जी जी बिल्कुल, वो तो है ही सर। आपका हमेशा से गाना बहुत अच्छे रहे हैं। और जिन लोगों ने आपके साथ काम किया है, एंड दे आर ऑल्सो वेरी, दे फील वेरी लकी दैट आपके लिए गाए हैं उन्होंने। एंड दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट कोक स्टूडियो। सो आई हैव गॉट मैसेजेस फॉर यू फ्रॉम टू ऑफ योर सिंगर्स फ्रॉम कोक स्टूडियो। एंड वन इज कादिर भाई, जो आप जानते हैं कादिर भाई। वो मेरे गुरु हैं। कादिर भाई से मैंने भी मुझे संगीत की तालीम ली है कादिर भाई से। अच्छा। जी, तो उनका उनका एक मैसेज है आपके लिए कि माई एसोसिएशन विद जैज। वेरी क्लोज टू मी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, वही वही उन्होंने बोला है कि माई एसोसिएशन विद जैज इज अ वेरी लॉन्ग एसोसिएशन. He is like a family to me. I am fortunate to work with him in Coke Studio Season 1 and wishing Les all the very best for his future songs. Wow. So this was Kadir bhai and जी जी बिल्कुल। और एक और भी एक वीडियो मैसेज है एंड इट्स अ फैंटास्टिक वीडियो मैसेज। मैंने कल रात उनको पिंग किया था। मैंने कहा भाई मेरे को मैसेज चाहिए आपके, मतलब आई एम गोइंग टू इंटरव्यू लेस्ली लिविस। तो ही सेड ओके, मैं दोपहर में भेजता हूँ। सो लेट मी जस्ट टर्न ऑफ, आई मीन टर्न, मैं अपना कैमरा जो है वो चेंज करता हूँ एंड लेट यू सी हुज मैसेज इट इज। सो दिस इज नन अदर देन शान भाई and he has sent a message for you. Hi guys, I'm Shan, and this is a special shout out my very talented dear friend and brother Leslie Lewis. And we go back a long way, and I've sung a lot of jingles and films for Leslie. Learned a lot from him about I remember how so much. There's been such a great association. I also want to say doing the Coke Studio live with him was a great experience, and we've done lots of live shows together, so it's always wonderful to, be with Leslie. There's so much to learn from him always, and he's such a lovely, kind human being, and fabulous, and hope to meet us soon. So this was Shan bhai for you. So या सर आपकी आवाज गई है, ये मेरे को ही गई है या सभी के लिए गई है? जी आगे आगे। हाँ जी सर, तो दिस वाज शान भाई, जी। नहीं, अच्छा लगता है कि सब आर्टिस्ट के दिल में मैं कहाँ तो बसा हूँ ना। अब तक सब आर्टिस्ट के दिलों में बसा हूँ, फैंस में तो हूँ। आर्टिस्ट आल्सो स्टिल रिमेंबर मी फॉन्डली इन अ नाइस वे। बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। And frankly speaking, you have made lives of lot of singers. Like अगर मैं केके की बात करूं तो विदाउट पल एंड विदाउट यारो दोस्ती, तो मतलब ये दोनों हटा दे तो केके का एक बहुत मेजर एक वैक्यूम आ जाएगा। अगर वो दोनों सॉन्ग्स वहां हटा देंगे तो you made life of lot of singers as well. So that is why they are very much attached to you. Now it is time to make life of Leslie. बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। एंड हम आपके साथ हैं और हम वी विल नेवर लेट यू लीव। एंड हम आपको जरूर वापस आपके म्यूजिक सुनने के लिए आतुर हैं। एंड डेफिनेटली ऑल योर म्यूजिक विल बी ग्रेट। अच्छा सर, ये जब हमने MTV की बात करी है तो देयर वाज अनदर MTV शो कॉल्ड एज MTV अनप्लग्ड। एंड MTV अनप्लग्ड का जो प्रदेश में जो स्टेज परफॉर्मेंस होती है, यू एंड आई मीन द कॉलोनियल कजन्स वर द फर्स्ट इंडियंस टू एवर परफॉर्म देयर एट MTV अनप्लग्ड, एंड दे आल्सो बैग्ड एन अवार्ड। सो
कुछ बताना चाहेंगे उसके बारे में? हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस आउट देयर ऑन एमटीवी अनप्लग्ड? I lost internet for 2 minutes. Oh, Can you okay. repeat your question? Yeah. So my question is that now that we have talked about MTV, so there is another program called as MTV Unplugged, and Mhm. Colonial Cousins were the first Indian thing that happened to Not MTV first, Unplugged back. not first, Oh, okay, only. okay, only, yeah, only correct. So the only Indian have those who have performed there in MTV Unplugged there in the, and they've won the award as well. So sir, what was your feeling and how was the experience performing on the stage of MTV Unplugged there with so many international artists? मैं 1996 की बात कर रहा हूँ. So you can imagine जी, world was a different place उस time. करेक्ट, तो जी लंदन जी में जी जी, जाके आपको लंदन इनवाइट करके फर्स्ट टाइम 7 कैमरा ऑपरेशन मैंने तो कभी देखा नहीं, और ऐसा लाइटिंग अमेजिंग. सो द फीलिंग ऑफ हम इंटरनेशनल आ गए हैं. बिलबोर्ड अवार्ड्स जब लास वेगस में हमको मिला तो यू आर देयर. सिलीन डियोन है, मराया कैरी मेरे नेक्स्ट रूम में है. इट्स लाइक माय गॉड, सो जी वो जो एक्साइटमेंट जो होता है एज एन आर्टिस्ट, एक तो हम इंडियंस हैं तो हमको तो ये एक्सपोजर मिलता नहीं इतना ज्यादा, और वहां बुला के हमें अवार्ड्स देना और हमारा गाना सुन के जो भी फ्लोर पे जो था, जब पूरे जो बैक एंड जो साउंड रिकॉर्डिंग चल रहा था, ये स्टेज मैनेजर्स थे सब, एवरीबडी का एक सिंगल क्वेश्चन था, वेयर कैन वी बाय योर सीडी. वाओ, वेयर वाओ कैन वी वाओ बाय वाओ, योर सीडी. बहुत चेंज हो गया था गाना सुनने के बाद. सबका एक ऐसा एक मूड माहौल चेंज हो गया. सो आई फील वेरी ब्लेस्ड कि हमने सब किया हुआ है, देखा हुआ है. बट द रियल एंजॉयमेंट ऑफ जो म्यूजिक है ना, जो जैसे लोग आप जैसे बाकी के फैंस के लिए गाना, उनके लिए परफॉर्म करना, और एक आमने सामने, क्यों वही गाना जैसे मैं कहता हूँ. किसी ने मुझे पूछा ये ऑनलाइन गिग्स अभी चालू हो गए, अभी तो यही होने वाला है ऑनलाइन. बोला देखो ये एक दौर है, चलेगा थोड़ी देर, बिकॉज ऑफ द रीजंस जो है उसलिए हम मिल नहीं सकते. लेकिन लाइव जो होता है ना, अब ऑनलाइन, उस टाइम में हम लोग जब ऑनलाइन जब नहीं था, लाइव कॉन्सर्ट्स डीवीडी पे आने लगे, तो ओह हम लोग राइट राइट, बहुत खुश होते थे, अरे इसका कॉन्सर्ट डीवीडी पे, तो बैठ के पूरा डीवीडी घर बैठ के. थोड़े टाइम में वो निकल गया, वो एक्साइटमेंट निकल गई. लेकिन लाइव बैंड सुनने का अब तक किसी का एक्साइटमेंट गया नहीं, क्योंकि वही बैंड वही गाने हर रात इधर उधर उधर कहा ना परफॉर्म करते हैं, वही गाने कर रहे हैं 90%, और वही गाने और वही ऑडियंस मोर और लेस. लेकिन फिर भी हर वक्त ऑडियंस एंजॉय करता है, क्योंकि यू हैव टू एक्सपीरियंस म्यूजिक. जब मैंने राइट राइट, आपके लिए अब चंद्रमा गाया, हाँ आपने जी जी, एक्सपीरियंस किया है, वो आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगा. आप मेरे साइट पे राइट जाओगे तो राइट, आपको एक प्रोड्यूस्ड वर्जन ऑफ द सॉन्ग, लेकिन वो एक्सपीरियंस की मैं आपके लिए एक लाइव और एक कुछ, अभी सानी थापा आपने कहा कि वो ओरिजिनल सुना बट ये भी फ्रेश वो अलग क्यों लग रहा है, लेकिन से अच्छा भी लग रहा है, बिकॉज दिस फ्रेश. जी 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 कल आपके लिए सानी थापा फिर से गाऊंगा, उसमें कुछ अलग बात होगी. सो लाइव इज रियली द जी, की. और मुझे वही कोशिश करना है कि मेरे गाने थोड़े पॉपुलर हो जाए. नए गाने पुराने तो है, वो तो है, जी और वो लेके भी लोगों के तक पहुंच के उनके लिए लाइव परफॉर्म करो. जी बिल्कुल. और जैसे आपने बैंड की बात करी कि बहुत सारे बैंड थे एंड आपने इंडिया आए और इंडिया आके आपने एक नया बैंड बना दिया अपना, सो दैट इज द बैंड ऑफ बॉयज. सो वो उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? तो व्हाट अबाउट बैंड ऑफ बॉयज? तो उस टाइम कोई बॉय बैंड नहीं था इंडिया में. जी, और विनोद नायर करके मेरे फ्रेंड है, उनका आइडिया था और उन्होंने प्रोड्यूस किया था, और वो लोग चलो हम एक बॉय बैंड बनाते. और वो बॉय बैंड जब बन गया तो इतना पॉपुलर हो गया, मेरी नींद उड़ गई है, मेरा चैन खो गया. सर हो जाए, सर हो जाए. तो कोशिश वो जी, मेरी नींद उड़ गई है, मेरा चैन खो गया, तेरे प्यार में मेरी जान ये क्या हो गया है. मेरी नींद उड़ गई है, मेरा चैन खो गया है, तेरे प्यार में मेरी जान ये क्या हो गया है. ओ यारा
आजा मेरी बाहों में आ, ओ यारा आजा मेरी बाहों में आ। तेरी नींद उड़ गई है, मेरा चैन खो गया, तेरे प्यार में मेरी जान, ये क्या हो गया है, ये क्या हो गया है, ये क्या हो गया है। वाओ 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 वाओ, सुपर सुपर सुपर। मतलब वही वही एक्साइटमेंट, मतलब आई एम गेटिंग गूज बम्स, मेरे को गूज बम्स आ रहे हैं अभी ये सुनने के बाद सब लाइव। और अगेन परफॉर्म कर रहा है, वही तो एक्साइटमेंट है। म्यूजिक का जो एक्साइटमेंट लाइव में ही है, लेकिन रिकॉर्डेड जी म्यूजिक जी में आप इमोशन कैप्चर करके लाइक अ फोटोग्राफ एक अच्छा राइट फोटो राइट आप देख सकते हैं एवरीडे, लेकिन जब जी आप जी 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 देखते हो तो एक अलग फील आता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने मैंने फिर ये अपॉर्चुनिटी ली बैंड ऑफ वॉइस से। आई हैव कॉन्टैक्टेड समवन एंड ही हैज अगेन सेंड अ मैसेज फॉर यू। मैं पहले मैसेज पढ़ूंगा, उसके बाद बताऊंगा ये किनका मैसेज है। सो ये मैसेज है, Les is a living legend and one of the nicest one, warmest human beings. He's a gift to music and you can feel his essence in his creations. There is a sense of divinity and romance, just like the man himself. Happy to have connected to him in life. And ये मैसेज मेरे को भेजा है करण ओब्रॉय ने। ओह वाओ, थैंक यू। Sir, so I mean, the moment I contacted everyone, कि I'm gonna, आप करण हाँ के जी बारे में बोल रहे हो, आप करण के बारे में बोल रहे हो। मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, क्योंकि यू आस्क्ड मी हाउ बैंड ऑफ बॉयज हैपेंड। जी 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 इट बिल्कुल। वाज अ सोलो एल्बम फॉर करण ओबरॉय। ओह वाओ, तो जब ओके, विनोद सर ने इंट्रोड्यूस किया कि ये लड़का है, मुझे इसका एल्बम करना है, अच्छा दिखता है, जी गाता जी है, यू डू हिज एल्बम। हम्म तो थोड़ी देर में फिर विनोद ने सोचा एक लड़का तो 5 क्यों नहीं, जी वहां जी से जी बैंड ऑफ जी बॉयज शुरू। So it is only because बैंड of ऑफ Karan वॉइस। O'Brien that there is a band of boys. Wow, wow, amazing. And I'm gonna give this message to Karan as well now. ये जी। अच्छा, ये अभी हम गिटार जब आप बजा रहे थे तो थोड़ा सा गिटार का आवाज जो है कम ज्यादा हो रहा था। और ये एक स्टोरी है गिटार की आवाज की कम ज्यादा की जगजीत सिंह साहब के साथ व्हेन यू आर रिमिक्सिंग भीगी भीगी रातों में। सो Not भीगी जस्ट भीगी, जस्ट परी हूँ मैं। परी हूं मैं, ओके ओके, परी हूं मैं के साथ ये स्टोरी हो रही थी विद जगजीत सिंह साहब। सो प्लीज कैन यू लेट अस नो दैट स्टोरी, व्हाट एग्जैक्टली दैट स्टोरी इज। तो मैं थोड़ा डेमोन्स्ट्रेट करके बताता हूँ। क्यों, जब परी हूँ हाँ मैं जी हाँ जी मिक्स कर रहा था मैं, तो जगजीत जी सिंह अंदर आए थे। उनका रिकॉर्डिंग था, बुकिंग उनका टाइम क्रॉस हो रहा था, मेरा बुकिंग खत्म हो रहा था, उनका स्टार्ट हो रहा था, और मेरा गाना मिक्स नहीं जी हुआ, फाइनल नहीं हुआ था, हो रहा था। तो जगजीत जी सिंह जी जी पहचान थे मुझे, दे नो मी, सो ही वॉकड इन, आके वहां खड़े हो गए। तो गिटार मैंने बजाया था परी हूँ मैं में, जी लेकिन मेरा एक है कि मुझे बहुत लाउड, मेरा इंस्ट्रूमेंट थोड़ा मेरे नेचर की तरफ से थोड़ा सॉफ्ट ही रखा था। तो जी जगजीत सिंह जी के वो बज रहा है, तो अरे लेस्ली वो थोड़ा गिटार लाउड कर यार। तो मेरे माइंड में मैं कह रहा हूँ जगजीत सिंह जी प्लीज मेरा गाना छोड़ो, मुझे गजल नहीं बनाना है। तो जी लेस्ली और थोड़ा लाउड कर। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा लाउड करते करते उन्होंने बहुत लाउड करवा दिया, और मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा था कि अभी जगजीत जी बीच में बोल रहे कि गिटार लाउड कर, गिटार लाउड कर, गिटार लाउड कर। तो आज टुडे आई थैंक हिम, क्यों वो एक मेरा प्रॉब्लम था कि मुझे अपना गिटार लाउड नहीं, ज्यादा लाउड नहीं रखना था, लेकिन जी उन्होंने जी जी पूरा जी गाना सुन के मुझे बोला कि गिटार लाउड कर ले, और वही गिटार पूरा गाना, गाने का झोल जो चलता है। आई मैं तो आई नजारों के अनजाने के जहां से, लाई मैं तो लाई बहार के अफसाने भी वहां से। ना मुझे छूना, ना दूर ही रहना,
परी हूँ मैं, परी हूँ मैं, आए कोई मेरी पनाह में ले जाए ये नजारे, देखे कोई मेरी निगाहों में पहचाने ये इशारे, ना मुझे छूना न दूरी ही रहना, परी हूँ मैं, परी हूँ मैं, मुझे न छूना, परी हूँ मैं। Wow, wow, wow. Amazing, 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 super, super. And one can't imagine कि मैं एक्चुअली इमेजिन अपने माइंड में कर रहा था कि स्टूडियो में आप बैठे हैं, यू आर ऑन द कंसोल एंड जगजीत सिंह सर इज स्टैंडिंग देयर इन कुर्ता पजामा, यार ये गिटार थोड़ा और तेज कर दे। सो इट इज बट लेकिन बिग थैंक्स टू जगजीत सिंह साहब कि उन्होंने आपको बोला एंड यू इम्प्रूव एंड सच ब्यूटीफुल सॉन्ग केम आउट। और आज क्योंकि डॉटर्स डे भी है, आज है कल था, आई थिंक आज ही है डॉटर्स डे, तो ये गाना बड़ा एप्ट भी बैठता है उस पर्टिकुलर मतलब डॉटर्स डे के लिए आज। सो फैंटास्टिक सर। जब बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा लगता है कि ये जो गाना है परी हूँ मैं, वो जी फाल्गुनी पाठक ने लेके इतना उसको डंडोरा पीट दिया है, तो आई कॉल इट द नेशनल एंथम ऑफ गुजरात। वाह ग्रेट ग्रेट राइट राइट दो डांडी जी राइट राइट बिल्कुल। ये गाना कहाँ घुमा हुआ है with all beautiful women in the world. It's like you're right, Daughter's Day and it's a daughter's song, राइट राइट बिल्कुल एग्जैक्टली। कुछ मेरे ख्याल से नेट में इशू है, लेट मी जस्ट वेट। हाँ सर, तो अच्छा सर, ये एक स्टोरी और है, उसके बाद बिकॉज बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है, 7-8 मिनट ही बचे हैं, ये सेशन जो है इंस्टाग्राम हमको 1 घंटा ही रखता है, उसके बाद वो बंद कर देता है बाय डिफॉल्ट। लेकिन सर जो रिमिक्सेस है आपका, वन ऑफ द बेस्ट रिमिक्सेस लाइक तो भीगी भीगी रातों में एंड जानम समझा करो। सो इट्स नहीं है, अच्छा समझा करो ओरिजिनल गाना है जो एज एन इंडिपेंडेंट गाना इतना बड़ा हो गया था, they made a movie called जानम समझा करो। वाओ राइट राइट राइट। ओरिजिनल सॉन्ग इज द इंडिपेंडेंट सॉन्ग जानम, जो मैंने आशा जी के लिए कंपोज किया था। वो गाना इतना फेमस हो गया तो उन्होंने एक मूवी बना दिया जानम समझा करो। सो इट्स नॉट अ रीमिक्स। जी जी ओके 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 जी जी जी। तो सर वो स्टोरी बताएं, बिकॉज मुझे जितना मालूम पड़ा है कि Pancham Da was also interested to make music with you. So that story we would like to. I was in Selfridges लंदन में और कलोनियल कल्स का मेरा रिकॉर्डिंग हो रहा था, तो आशा जी भी वहाँ शॉपिंग कर रही थी, तो मुझे मिले तो बोला मैं अपना खुद का कर रहा हूँ एल्बम। तो आशा जी ने कहा कि सो ही हैड पास्ड अवे, तो आशा जी ने कहा देखो पंचम को तुम्हारे उनके जो पुराने गाने हैं तुम्हारे साथ करके नई पीढ़ी के लिए करना था। He wanted to recreate his songs with you for the next generation. तो अब वो नहीं है, तुम करोगे क्या? So I said wow, in the whole world वो किसी के साथ भी काम कर सकते, why me? तो मैंने डेफिनेटली, और मैं फैन भी हूँ, तो डेफिनेटली तो राहुल ने वहां से पिया तू अब तो आजा, वो मेरे सोना रे, वो सब गाने वहां से आए। तो फिर आशा जी के लिए ऐसे बैठ के, जैसे मैं आपके लिए अभी गाने बजाए ऐसे गिटार लेके प्ले सम सॉन्ग्स पर है कि मैंने ऐसा एक गाना, तो एक गाना ये था, तो आशा जी ने कहा कि मेरे लिए तुम ओरिजिनल गाना बनाओ, ओरिजिनल एल्बम जी। सब तुम्हारे गाने, आर डी बर्मन के गाने तो हो गए ऑलरेडी, राहुल एंड आई एक नया एल्बम करते। तो मेरा एक बॉसनोवा गाना था, आजा तू आजा दिल में समा जा, तो आशा जी को ये बहुत अच्छा लगता था। आशा जी बोला कि ये गाना अब मेरे एल्बम में करेंगे, और मेरे माइंड में मैं सोच रहा कि बाबा ये मेरा गाना है, मुझे गाना है।
आशा जी को दे दूं। तो बहुत कर करके जी मैंने जानम समझा करो कंपोज किया, और फिर आशा जी बोला हाँ ये गाना हम लोग करते हैं, तो मेरा गाना निकल गया बच गया। सो दैट्स द जी स्टोरी जी ऑफ जी जानम जी समझा करो एक्चुअली। जी 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 वो मतलब वो गाना ऐसा था जो मतलब चार्ट बस्टर्स में हमेशा टॉप पे रहा है, और इट मतलब हमेशा टॉप पे रहा है वो गाना। एंड यू कुड इमेजिन एवरी टाइम यू सिंग इट, यू कुड इमेजिन मिलिंद सोमन विद दैट गर्ल एंड शॉपिंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो यू इमेजिन दैट सॉन्ग। सो इट इज ऑलवेज बीइंग सो फ्रेश। जी अच्छा सर, जाते जाते एक चीज और हम जानना चाहेंगे, बिकॉज व्हेन वी फर्स्ट सॉ यू फॉर कोलोलियन कजिन्स, तो हरिहरन जी को तो जानते थे, एंड यू आर लाइक यू ब्रॉट अ वेरी यूनिक स्टाइल स्टेटमेंट विद यू, विद फोर आपके जो ये हाँ जी, ये अभी ब्रेड्स तो एक है, पहले चार थे, अ, चार थे, उस अब टाइम चार थे तो एक ही बैलेंस है, 6 बाल बाकी है। तो बिल्कुल, तो ये स्टाइल स्टेटमेंट आपका, आई मीन हाउ हाउ कैसे, मतलब आपका ये रुचि स्टाइल में अपनी। वो लंदन वंदन घूम के यू नो यू सी पीपल यू एंड यू फील कि मुझे भी अपने दिल में जो है उसे हमें बाहर लाना है। वो कैसे, जी दैट स्टाइल स्टेटमेंट इज रियली दैट कि हमारे अंदर क्या है, उसको आई वांट टू वेयर माई सेल्फ, कि पब्लिक देखे कि राइट राइट सुने अलग बात है, वो जब एल्बम लेंगे व्हेन दे सी मी दे शुड फील दैट दिस इज द गाय, आई लाइक दिस गाय, आई लाइक हिज म्यूजिक, आई लाइक हिम। उसका जो पर्सनालिटी है वो आना चाहिए बाहर। तो मैंने उस राइट टाइम ब्रेड्स कर दिए 4, एंड इट एवरीबडी लव्ड इट, एंड वो एक्चुअली बहुत, वो ब्रेड्स तो बहुत चल गए। आई थिंक अक्षय कुमार कोई फिल्म में उन्होंने ब्रेड डाल दिया, अनु मालिक ने जो कुल्लू के कैप के ऊपर ब्रेड्स, तो एक एक आई एम सो एक्साइटेड कि लोगों को अच्छा लगता है, और वो भी कोशिश जी करते हैं जी कि जी करके यू नो फॉर देमसेल्व्स। राइट 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 सर, ग्रेट सर। जाते जाते बिल्कुल, बिकॉज दो दो एक मिनट ही बचे हमारे पास, वन लास्ट सॉन्ग, वट एवर योर फेवरेट सॉन्ग ऑफ योर्स, कुछ बजा के गाएंगे एंड देन विल। Okay, no, not much time. So this is for all your fans on your page, and जी for जी, you, Ayush. Thank you very much. थैंक यू सर। टाइम नहीं है तो थोड़ा सा गा लूंगा। यारों दोस्ती बड़ी ही हसीन है, ये ना हो तो क्या फिर बोलो ये जिंदगी है, कोई तो दिलबर हो या बेगरज तेरा हो या कोई तो हो राज़दार। यारों दोस्ती बड़ी ही हसीन है, ये ना हो तो क्या फिर बोलो ये जिंदगी है। My God, thanks a lot, sir. Thanks a lot, for this, for such a wonderful music from so many years, and we are really looking ahead for all the music जो आप You हमको just देने wait वाले कि हैं। गाना नेक्स्ट गाना आएगा, कार जोन्स करके सिंगर है, उसको मैं कंप्लीटली वो गाना भी आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कुछ नया है। तो देयर इज लॉट्स ऑफ न्यू जी जी म्यूजिक। जी 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 जी, बिल्कुल। सर आपकी आवाज थोड़ी गई, लेकिन हाँ जी, बिल्कुल लौट अभी काव्या जोन्स जी ने भी ज्वाइन किया था। हैव अ ग्रेट टाइम। जी, काव्या जोन्स जी ने भी ज्वाइन किया था बीच में। ओके। जी जी तो उसका तो नेक्स्ट आने जी वाला है जो मैंने प्रोड्यूस किया है, एकदम आई बिलीव इन दैट सिंगर। तो उसका जो टोटल गाना है, नयापन जो है, वो 2020s में न्यू म्यूजिक, इंडिपेंडेंट म्यूजिक कैसा होगा, दैट यू आर गोइंग टू सी। जी, great, sir. This is with this, I request everyone to please follow Leslie Lewis sir on his official YouTube channel and Instagram channel as well, so that you could get the updates of what all new music he's gonna produce and he's gonna give us. And trust me, as always, the music will be superb. So with that, sir, आखिरी 20 सेकंड बचे हैं, तो we'll have to take your, थैंक यू sir. वेरी मच। Thanks a lot for, थैंक thanks यू, for being with me and agreeing for this interview. माय प्लेजर। Thanks a lot, sir. बाय।
Bye, sir. Bye, sir. So this was This was Leslie sir with us.